میرا سوال یہ ہے, کویشچن اردو میں بولتا ہوں, کہ اکثر پاکستانی جرنلسٹ ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں یا ایون یہ جو ریفارمسٹ ہیں, پاکستان کے تحت ریفارم لانا چاہتے ہیں, ملٹری کے خلاف ہیں, ایکسٹریمزم وغیرہ کے خلاف ہیں, یا جو بلوچ ہیں جرنلسٹ ہیں, یا خاص کر پرو پارلیمنٹ ہیں جو پاکستانی پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پہاڑوں پر چلے گئے, یا بلوچوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریزسٹنس کی جو جدوجہد کر رہے ہیں یا وار آف لبریشن لڑ رہے ہیں, ان کو مجبور کیا گیا. ان کی بات کچھ حد تک تو سمجھ میں آتا ہے, خاص کر اگر پارلیمنٹ والے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی پہاڑوں میں چلے جائیں, یا ہمیں دیوار کے ساتھ نہ دھکیلا جائے کہ ہم بھی, کبھی کبھی لوگوں کا نام بھی لیتے ہیں کہ ہم فلانا بن جائے, یعنی ہمیں فلانا بننے سے روکا جائے, نہیں تو ہم بھی فلانا بنیں گے. یہ تو اگر ان کی مجبوری سمجھ میں آتا ہے, لیکن میں کچھ آزادی پسند دوست جو ہیں, کبھی کبھی ان کے دیوانوں میں بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بھی پتہ نہیں شعوری طور پر یا لاشعوری یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں, یا ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم ریزسٹنس کریں. تو میرا سوال آپ کے دوسرے اسپیکر سے بھی ہے, اور خاص کر جمال ناصر سے ہے, کیونکہ وہ آزادی کی سوچ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کا تعلق ایک آزادی پسند پارٹی سے, سیاسی پارٹی سے بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا بلوچ کا جو یہ ریزسٹنس ہے, یا اس کو آزادی کی جدوجہد ہے, یا وار آف لبریشن, جو بھی اس کو ہم نام دیں گے, ہماری جو جدوجہد ہے, یہ ایک شعوری جدوجہد ہے یا مجبوری ہے؟ مثلا اگر مجبوری ہے, کل کو گوادر کا مسئلہ حل ہو گیا, سوئی کا مسئلہ حل ہو گیا, وہاں پہ سب کو گیس مل گیا, باقی چھوٹے موٹے جو مسائل کبھی کبھی ہمیشہ ہوتے پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ حل ہو گئے, لیکن جو قابض ہے وہ وہاں پہ ہے, پاکستان ہے یا ایران ہے, وہ تو بلوچستان میں ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے مراد ہم لوگوں کو دیے, ہم خوش ہو گئے, تو کیا پھر ہماری مجبوری ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ریزسٹنس کو یا جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یا نہیں ہماری جو جدوجہد ہے وہ ایک شعوری جدوجہد ہے, وہ اس وقت تک ہے جب تک قابض بلوچستان سے نہیں نکلے گا, وہ ایران ہو یا پاکستان ہو, جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا ہمارا یہ جدوجہد جاری رہے گا. تھینک یو. جی جمال ناصر آپ ذرا جواب دیجیے فیض بلوچ کا. جتنا میں سمجھ سکا سوال کو, ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو آزادی پرست جو بلوچ ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کا جو بات کرنے کا انداز یا دلائل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انہیں مجبور کیا گیا ہے, یا میرے خیال سے بدقسمتی سے بلوچ جب خیربش مری زندہ تھے, کہ جب شہید غلام محمد زندہ تھے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب 2006 7 8 9 اس وقت جو بلوچ کی سیاست تھی, تو ان کا جو بلوچستان میں جو آزادی پسند سیاسی تنظیمیں, ان تنظیموں سے ان کے ممبر نکل کے بنے جو خود پارلیمان پرست ہوا کرتے تھے. تو یعنی وہاں پر ایک کلیئر ڈسٹنکشن پیدا کیا گیا سیاست میں کہ ہم جو موجودہ سیاست جو پاکستان کی فیڈریشن کی سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ سیاست نہیں ہو سکتی, یہ غلامی کی سیاست ہے. اور شعوری طور پر ایسے بلوچ سیاسی لیڈروں نے, جن میں بہت سے شہید کر دیے گئے, بہت سے انتقال ہو گئے, اور بہت سے آج کل بلوچستان میں شاید موجود نہ ہوں, لیکن ایسے لوگوں نے اس ڈسٹنکشن کو کلیئر کیا کہ بلوچ جو سرزمین ہے اس پہ جبری قبضہ کیا گیا ہے, اس لیے یہ مقبوضہ بلوچستان ہے, اور مقبوضہ بلوچستان کا ایک لیگل رائٹ ہے, ایک سیاسی حق یہ ہے کہ وہ پھر سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. آزادی حاصل کرنے کے بعد ہی بلوچ اپنی ثقافت, اپنے زبان, اپنے کلچر, اپنے وسائل کو بچا سکتا ہے, اور ایک ترقی یافتہ آزاد ملکوں کی طرح, آزاد قوموں کی طرح آگے جا سکتا ہے. اگر ہم جس طرح فیض بات کریں, یہ جو ڈسٹنکشن جو ویگ ہونا شروع ہوئی اس وقت جب بہت سے لیڈروں کو شہید کر دیا گیا, بہت سے لوگوں کو آج کل بھی ان کو
कुछ अता पता नहीं है, वो पाकिस्तान के जिंदानों में हैं, किसी को नहीं पता वो किस हालत में हैं, या बहुत से लीडरों का इंतकाल हो गया। और जो मेरा तज्जिया है, ऐसे बलोच पार्लिमानी पार्टीज हैं जिनसे ताल्लुक वो रखने वाले लोग, इन पार्टियों में इन्फिल्ट्रेशन की गई ताकि नजरिया जो बलोच आजादी का जो क्लियर एक डिस्टिंक्शन था, जो नजरिया था, उसको वेग किया जा सके। नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनमें एक फर्द थे जिन्होंने पब्लिकली फेसबुक पर खैरबश मरी को फाशिस्ट का खुलेआम, कि वो क्यों बलोच की बात करते हो फाशिस्ट थे। इसी तरह जब ये डिस्टिंक्शन खत्म होना शुरू हो जाती है तो जरूर नजरियाती तौर पर वो खुद जो वर्कर आजादी की बात करे वो खुद नहीं जानता जद्दोजहद का मकसद क्या है। वो फिर उन्हीं वोकैबुलरी, उन्हीं परसेप्शन को अडॉप्ट करता है जो उनको एक तरफ या दूसरी तरफ से फीड किया जाता है लाशऊरी तौर पर। वो उनको पिक, मैं नहीं कह रहा कि शऊरी तौर पर वो इस बात को आगे ले जा रहे, लाशऊरी तौर पर इस तरह की पब्लिकेशन की जाती हैं, इस तरह के लोगों को उनके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हर जलसे जुलूस में जाकर यही करते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है, हमें तो पाकिस्तान ने मजबूर किया। जाहिर बात है वो डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए। लेकिन ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक बात फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की है, हमारे पास हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पास वो डिस्टिंक्शन अब तक मौजूद है। हम इस बात पर वेग नहीं हुए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल को शायद वो हमारी बातें सुनकर या इस पर खुद तज्जिया कर वो इस बात का खुद एहसास करेंगे कि नजरियाती तौर पर या सियासी तौर पर वो उस रास्ते से थोड़ा सा वो उस रास्ते पर नहीं चल रहे जिस रास्ते पर खैरबश मरी चले थे, जिस रास्ते पर शहीद गुलाम मोहम्मद चले थे, जिस रास्ते पर हजारों बलूच या सैकड़ों बलूच जो आज जिंदानों में हैं, उनका जो नजरिया था वो उस रास्ते को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। उनको खुद मेरे ख्याल से इस बात का एहसास होना चाहिए और उम्मीद है कि आगे चलकर वो इस तरह की कम से कम दलील नहीं देंगे जिससे ये आप जैसा फैज मोहम्मद जैसा शख्स या कोई और गैर बलूच ये तासुब ले कि ये एक रिएक्शनरी जद्दोजहद है या बेजारी या मजबूरन कोई जद्दोजहद शुरू की। कल को बलूचिस्तान को जो भी हुकूक मिले, वो हुकूक जो स्कॉटलैंड को हासिल है आज इंग्लैंड के अंदर या कैटलोनिया को स्पेन के अंदर आ, वो हक हुकूक भी मिले जहां पर उनकी अपनी एक बैरक है, कैटलोनिया की, स्कॉटलैंड की अपनी बैरक है, एक झंडा है, वो भी हुकूक बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मिले। मैं या हमारे जो सियासी दोस्त हैं वो फिर भी इस बात पर यकीन रखेंगे कि बलूचिस्तान को आजाद होना चाहिए, हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। मैं इस मौके पे बलोच जमाल नासिर बलोच साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी। उस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आप सब बलोचों को हक दो तहरीक की मुबारकबाद देना चाहूंगी। चाहे वो तहरीक किसने चलाई, कैसे चलाई, इससे हम सिंधी कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि छोटी छोटी कामयाबियां इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की खुशखबरी लेकर आएंगी। मैं अपने सवाल की तरफ जाऊं उसके लिए मैं जमाल नासिर साहब के ही अल्फाज कोट करूंगी। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान वो रजिया है जो गुंडों के बीच में फंस चुका है। तो दरअसल पाकिस्तान को बनाया ही रजिया की नीयत से गया था, इसीलिए पाकिस्तान शुरू से लेकर अब तक गुंडों के ही बीच में फंसा रहा, जिसका सबूत ये है कि मेरे आबा व अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी की जंग की। सबसे पहला मार्शल लॉ अंग्रेजों ने सिंध में लगाया, उसके बाद आज मेरी सिंध में 2 माह का बच्चा उठा लिया गया है अपनी माँ और अपनी खाला के साथ। इस आजादी की जद्दोजहद तो मेरे आबा व अजदाद ने नहीं की थी, ना ही आपके आबा व अजदाद ने की थी। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आजादी लेना बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है, उसके बाद उस आजादी को सेव करना भी बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। क्योंकि मैं जब आप लोगों की बातें सुन रही थी तो उस वक्त सूडान की आजादी के मुतालिक पढ़ी हुई एक बात मुझे याद आ रही थी कि सूडान में मुस्लिम अक्सरियत थी और फिर वहां पे क्रिश्चियन जो थे वो बहुत ज्यादा। तो जब साउथ सूडान आजाद हुआ
تو वहां पे क्या किया गया कि साउथ सूडान में ट्राइबल जंग शुरू करा दी गई नैयर कबीले के बीच में और डिनका कबीले के बीच में, जिस डोमेस्टिक वार में उनके कई हजारों लोग कत्ल करवा दिए गए। तो जैसा मैंने आप लोगों की बातों से सुना कि यहाँ पे भी जो मेंगल है वो मेंगल को ही वोट देगा, जो कलमती है वो कलमती को वोट देगा, मतलब ट्राइबल जो है ना वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप इंशाल्लाह ताला हम सबकी दुआओं के साथ और अपनी जदोजहदों के साथ और अपनी जंग के साथ आजादी हासिल कर लेंगे तो कहीं वो आजादी मिस यूज तो नहीं हो जाएगी शऊर की कमी की वजह से। जैसे जब बंगाल आजाद हुआ तो बंगाल की फौज ने पूरी कोशिश की थी कि इंटरफेयर करें और उसको रूल आउट करें, मगर वहां पे बंगाली अवाम के पास शऊर था तो उन्होंने अपनी आर्मी को एक तरफ से बैरिकों में भेज दिया। लेकिन ये शऊर की कमी मुझे सिंध में भी नजर आती है। हम भी इनसिक्योर होते हैं कि जब हम आजादी अचीव कर ले तो वो हमारे फ्यूडलिस्ट या हमारी सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी जो ऑलरेडी रियासत की क्लाइंट है उनके हाथों में ना चला जाए। तो आप लोग उसको किस तरीके से फेस करेंगे और उस शऊर को कैसे डेवलप करेंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। जमाल नासिर, आप समझ गए शायद वो सिर्फ मुख्तसरन ये पूछ रही हैं कि आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। आज़ादी तो पाकिस्तान ने भी ली है, आज़ादी तो बांग्लादेश ने ली है, तो उस आज़ादी को पर मेंटेन रखने के लिए क्या आपके पास लाए अमल है और क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि वो आज़ादी पाकिस्तान जैसा मुल्क बनेगा, तो फ़ायदा क्या है, वो यही पूछना चाहते हैं। शम्स जी, मैंने उनका सवाल सुना। पाकिस्तान को तो बरतानिया ने खुद बनाया, इस पर जो एविडेंस मौजूद है, बहुत से पंजाबी एकेडमिक्स हैं, उन्होंने खुद किताबें लिखी इस पर। लेकिन जो आपने साउथ सूडान की बात की, या इसी तरह इरिट्रिया में भी हुआ है और बहुत से इलाकों में हुआ है कि वहां पर आजादी के बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी या जो राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी इंसानी हुकूक होते हैं या डेवलप इंसान उस तरह कर पाता है, वो उनको नहीं मिले। आप अगर सीरिया में देखें, कुर्दों की जो बहुत से तहरीकें हैं, ब्रांचेस हैं उसके, इराक में जो कुर्द हैं उनके अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं जो बरज़ानी और तालिबानी हैं, तुर्की के कुर्दों से जरा जुदा हैं। लेकिन जब आप सीरिया में जाते हैं तो एक रोल पीकेके का वहां पर रहा है। मैं सीरिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सीरिया में जो असद के खिलाफ जद्दोजहद थी उसमें अरब सेक्युलर जो हैं लोग और सियासी रहनुमा, सियासी लोग, उन्होंने जद्दोजहद शुरू की थी, वो जद्दोजहद के साथ थे और बहुत सालों से एक जद्दोजहद चल रही थी। और अरब स्प्रिंग आप इसी तरह बहुत से दूसरे जगह पर देखें, क्योंकि वहां पर एक लीडरशिप नहीं थी, उनका फलसफा क्लियर नहीं था। वहां पर एक चीज तो चेंजेस तो वहां पर इम्प्लीमेंट की गई है, चेंजेस आ गई उस रीजन में, लेकिन वहां पर लोगों के लिए ज्यादा नुकसानात हुए, ज्यादा नुकसानात इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की वजह से हुए, अनार्की की वजह से हुए। तो अब ये आपने कल की बात की है, फ्यूचर की बात की है, इस पर हमारे दोस्तों ने, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के दोस्तों ने एक चार्टर, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर के नाम से एक चार्टर रिलीज किया है। लेकिन मैं उस चार्टर की बस इजाजत इतना कहूंगा कि उसके अंदर एक प्लान है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मैं जो देख रहा हूं बलोच आवाम में या बलोच सियासी कारकुनों में शऊरी तौर पर उस चीज को हम डालने में कामयाब नहीं हो सके कि हम कल की हिफाजत किस तरह करेंगे। उस पर हमें काम करना है सब बलूचों को, क्योंकि अगर बलूचिस्तान की जद्दोजहद की जा रही है वो एक पार्टी की जद्दोजहद नहीं है, कौमी जद्दोजहद है जिसमें तमाम बलूच किसी न किसी तरह एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सीरिया में, मैं सीरिया की मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ, सीरिया में वही अरब थे जो जिनके अपोजिशन ग्रुप्स वगैरह थे वो ऑर्गेनाइज नहीं थे सियासी तौर पर, उनके कारकुनान सियासी तौर पर क्लियर नहीं थे। वहां पर आईसिस का और अलकायदा का उबूर हुआ, वहां पर आईसिस ने जन्म लिया। आईसिस जो कि पहले इराक में था, फिर वो सीरिया में आया और फिर इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया उन्होंने बनाया। और दूसरी तरफ वही कुर्दिश जो ग्रुप थे, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर थे, पॉलिटिकली बहुत ऑर्गेनाइज थे, उनके पीछे पीकेके था जो खुद एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तुर्की में जिसकी बुनियाद रखी गई थी अब्दुल्ला ओजलान की तरफ से। उनके अंदर पॉलिटिकली वो सेक्युलर थे, उनके अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिसाब से क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने इस तरह के पॉलिसीज लाए, वो ना सिर्फ कुर्दों के लिए
उसी, क्योंकि मैं ये बात अपने ट्राइब्स के ऊपर की, वो इंतहाई ट्राइबल इलाका है, वहां पर लोग सब ट्राइबल हैं, कुर्द हों, अरब हों या असेरियन, सब ट्राइब्स से, एक दूसरे के ट्राइब्स से बंधे हुए। लेकिन अगर कोई इस बात पर तहकीक करना चाहता है तो वो तहकीक कर सकता है किस तरह कुर्दिश ग्रुपों ने अरब ट्राइब्स को अपने साथ मिलाकर वहां पर स्टेबिलिटी पैदा की, वहां पर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट पैदा किया और एक ऐसा रीजन जो जिसको आज रोजोवा फेडरेशन कहा जाता है इस्टेब्लिश किया, जहां पर कुर्दों के अलावा अरब्स, असेरियन, क्रिश्चियन, याजीदी, सब एथनिक ग्रुप्स और सब लोगों के लिए यकसा हुकूक हैं। और वहां पर वो मिडिल ईस्ट का, मेरे ख्याल से इसराइल के बाद, इसराइल को द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट कहा जाता है, उसके बाद अगर आप जाएंगे सीरिया के सिविल वार के अंदर उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जो कि एक इंतहाई डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट था, जहां पर एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट था, जहां पर आपको लग सकता था कि लोगों को कुछ मिला है इस जद्दोजहद से। तो ये डिपेंड करता है बलूच लीडरशिप पर, हम सब पर, बलूच कारकुनान पर, कि वो कितना तवज्जो इस बात पर देते हैं कि वो एक ऐसा बलूचिस्तान कायम करें, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं, बलूचिस्तान चार्टर हमने बनाया है, दोस्तों ने वो बनाया है, लेकिन उसको फैलाना भी है नजरियाती तौर पर लोगों के जहनों में, ताकि वो अपने हक हुकूक को जान सके। वो काम हमने अभी तक नहीं किया, जिस पे काम होना बाकी है। अगर हम काम करेंगे, या हम जैसे दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चार्टर पर भी इत्तेफाक अगर ना करें, लेकिन कुछ बुनियादी चीजों पर वो बलोच कौम के अंदर शऊरी तौर पर ये दिमाग में उनके डालते हैं कि उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं एक आजाद बलूचिस्तान में, तो मेरे ख्याल से जिस तरह अगर कुर्द तब्दीली ला सकते हैं एक रीजन के अंदर, तो बलूच, सिंधी, पश्तून और दूसरे कौमें भी ला सकते हैं। लेकिन ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो या पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, उन पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर आपका कैसा होगा, उनकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अगर वो उनकी स्ट्रेटेजी गलत होगी तो हमारा हाल भी वही होगा जो आज हम अगर पाकिस्तान और पंजाबी फौज की वजह से दरबदर हैं, कल हम बलूचों की वजह से दरबदर होंगे। और अपने जिस तरह एरिट्रिया आजादी के बाद रिफ्यूजीज उनके आज यूके और यूरोप और दूसरी जगह पे एरिट्रियन हजारों की, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी हैं आजादी के बाद, क्योंकि उनके अपने लोग दूसरे डिक्टेटर या दूसरे जो जाबिर बन चुके हैं। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, फूड डिसअपीयरेंसेस होते हैं। तो ये फिर से बलूच लीडरशिप और बलूच सियासी कारकुनान के ऊपर आता है कि वो इसके बारे में क्या कुछ कर पाते हैं कि बलूचिस्तान का कल सिक्योर हो, एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर हो, एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर हो, जहां पर बलूच को हक मिल सकें, जहां पर बलूच के उसके बुनियादी हुकूक उसे मिल सके, उनका